अच्छा जी, so we have this paper with us, which is going to be from IGCSE Paper 2, Variant 3 from October November 2025. And let's start. Now, again, what we're going to do is basically we'll be marking all the easier questions initially, usko first attempt में solve करेंगे, and then we'll move on to the difficult ones slowly and gradually. So I believe question number one should be easy. Number angles, I think X find करना होगा. That is what it seems to be. इसके बाद question number two, three, these are like very easy questions. I believe इनको हम attempt कर सकते हैं. फिर again some word problems, we'll skip it. Maybe scatter diagrams, these are usually easier questions. We can solve this in the first attempt, and then we move on. Vectors के questions भी काफी आसान होते हैं, which does not require any diagram or anything. If you want, you can try these. Indices, obviously we should be doing it in the first attempt. This one is for IGCSE. Islam. This one is for IGCSE. We'll not do it right now. We'll try towards the end. And then we have, we can try these ones. These should be easy. Indices again. Circle properties, it depends. If you're comfortable with it, go do it. If no, skip it for now. This one should be for IGCSE as well. We won't try it right now. Factorization should be easy. No reading time required. आसानी से कर सकते हैं. We have, क्या कहते हैं, number sequences, easy. This one's for IGCSE. IGCSE के इसमें आज काफी ज्यादा questions हैं जितने हम वैसे usually कर रहे होते हैं. This has quite a bit of IGCSE questions. ठीक है. अच्छा, again mensuration skip कर लो. Circle properties, your call. And your call. Surge, we can short answer easy questions. Rationalization is first attempt, easy questions. And then probability, again, some easy questions, we'll try it in the first attempt. ठीक है. So this paper has around 28 questions. काफी ज्यादा इसमें जो है questions, 29 questions for this paper. ठीक है. So now starting off with first question, if we have a look, so this question states the diagram shows an isosceles triangle. Find the value of x. Now, what do you think? How do you find the value of x? Considering this is isosceles, we know that this length and this length should be same. हमारे पास 25 degrees given है on this side, so that means this is going to be 25 as well. So we can easily calculate the value of x. So that should be 180 minus 2 times of 25. So मेरे पास आंसर आ जाएगा. This should be 130. ठीक है. पार्ट बी को देखो जरा क्या कहता है. फाइंड कहता है फाइंड द लार्जेस्ट ऑड नंबर दैट इज कॉमन फैक्टर ऑफ 90 एंड 120. ठीक है. सो दोनों के हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं. उसमें से जो लार्जेस्ट कॉमन ऑड फैक्टर होगा हम उसको आंसर कर लेंगे इसमें. इफ वी हैव अ लुक व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 90 एंड व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ what are the factors of 90 and what are the factors of 120. बच्चे जल्दी से इसको लिस्ट डाउन कर लेंगे. जब हम 90 के फैक्टर्स की बात करते हैं, so that should be 1 and 90, 2 and, जल्दी से बताओ, is it me who's lagging? 2 and 45, 3 and 30. चलो चलो, I hope it's better now. ठीक है. अच्छा, so 1 and 90, 2 and 45, 3 and 30. फिर क्या आता है हमारे पास? What else can we do? 4 से आता है, 4 से probably not. And then 5 में कौन सी टेबल से आएगा? जल्दी से बताओ. 5 times 18. 5 times of 18. इसके बाद which of the factor can we have? 6 की टेबल में आता है. It's going to be 6 times of 15. So these are a few factors that we know. ठीक है. 6 की टेबल में आएगा 6 times of 15. एंड फिर क्या आएगा हमारे पास? 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में. Now, in the meantime, मुझे बताओ कि इनमें से जो जो ऑड फैक्टर्स हैं, फटाफट देखो मुझे बताओ. ये जो ऑड फैक्टर्स हैं इसमें कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि 120 की टेबल में भी आता है? सो दिस वाज ऑड, दिस वाज ऑड, दिस वाज ऑड, दिस वाज ऑड, ऑड एंड ऑड. सो व्हिच फैक्टर इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ 120? फटाफट बताओ कौन सा फैक्टर है जो 120 का फैक्टर भी है. फिर कंफ्यूज्ड, वी आर गोना सॉल्व इट फॉर 120 एज वेल. सो 120 के फैक्टर्स निकाल लेंगे इसी तरीके से. दैट्स गोइंग टू बी 1 into 120, 2 into 60, 3 into 40, and then you can do 5 times 5. कितनी टेबल में आता है? दैट
be 24, I believe. 5 times of 24 and ठीक है मोहम्मद हुसैन ही चलो 5 times of 24 6 times 6 किसकी टेबल में आएगा 6 times of that should be 20 and 7 में नहीं आएगा 8 में आएगा 8 times of 15 I believe right so 8 times 15 the correct answer is 5 नहीं 5 नहीं होगा I think it's 15 ठीक है if you meant 15 that should be fine 8 times of 15 and then 9 में नहीं होगा 10 times of 12 ठीक है तो 10 times of 12 now we'll have a look कि कौन सा फैक्टर ऐसा है जो दोनों में अवेलेबल है it's the largest as well and it's the odd number as well so हम जल्दी से इसको मार्क डाउन कर लेते हैं odd numbers यहाँ पे so this was odd odd so मुझे बताओ can I say 15 is available in both दोनों में 15 है हमारे पास and that should be the largest as well so I think somewhere here right so I hope this answers the question now ठीक है अच्छा इसके बाद क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखो दिस इज एन इंटरेस्टिंग वन द डायग्राम शोज अ नेट ऑफ अ डाइस द डाइस हैज 6 फेसेस नंबर्ड 1 to 6 सो ये 1 to 6 इस डाइस की सारी फेसेस होंगी द सम ऑफ ईच पेयर ऑफ द ऑपोजिट फेसेस ऑन द डाइस इज 7 अगर आप दो ऑपोजिट फेसेस को ऐड करोगे तो हमेशा क्या होगा 7 होगा कि राइट द मिसिंग नंबर्स ऑन द नेट now you need to visualize कि if let's just say I consider this to be the base अगर मैं इस part को base consider कर लूं so can I say this is going to be one of its wall this is going to be its second wall this is going to be the third wall and this is going to be the fourth wall surrounding four do we all agree with this yes or no जल्दी से बताओ क्या हम सब इस बात से एग्री करते हैं एंड देन दिस शुड बी व्हाट दिस शुड बी द टॉप ठीक है ये टॉप होगा वेयर आई एम कंसिडरिंग दिस टू बी द बेस सो मुझे बताओ कि हमें क्या कह रहा है दोनों जो ऑपोजिट साइड है उसका सम 7 होना चाहिए सो अगर ये टॉप था तो इसकी ऑपोजिट साइड ये होगी इसका सम क्या होगा इसका नंबर क्या होगा कैन आई से दिस वन सपोज टू बी 3 डू वी एग्री जल्दी से बताओ डू वी एग्री Yes, sir. यस अच्छा अब इस बात को समझो कि अगर ये वाली साइड है ये तो उन दोनों की सराउंडिंग वॉल्स थी राइट सो कैन आई से इसकी जो पेयर होगा दैट शुड बी दिस साइड डू वी एग्री विद दिस हम अग्री करते हैं इस बात से ठीक है सो इस Yes. साइड हम कह सकते हैं दिस इज गोइंग टू बी 6 1 plus 6 दैट गिव्स अस 7 तो मुझे जल्दी से बताओ ये वाली साइड क्या होगी इट शुड बी अ पेयर ऑफ नंबर 3 सो इन दोनों का सम दैट शुड बी 7 एज वेल सो दिस गिव्स अस 2 आई होप दिस पार्ट इज क्लियर बात समझ आई मेंसुरेशन को जब हमने डिटेल में किया था 3D से इसको विजुअलाइज किया था सो दिस इज व्हाट वी लर्न हाउ डू यू फॉर्म नेट्स जस्ट ट्राई टू मेक दिस एनी ऑफ किसी भी एक चीज को बेस कंसीडर कर लो एंड उसको जरा विजुअलाइज करो कि चार तो उसकी सराउंडिंग वॉल्स होंगी और एक टॉप होगा सो एंड देन द ऑपोजिट साइड्स आर सपोज्ड टू बी 7 ऑलवेज so that's what you're going to do for this part ठीक है चलो scatter diagrams now इस क्वेश्चन को जरा देखो examiner says the scatter diagram shows the value in thousands of dollars of 10 paintings in 2005 and the value of the same paintings in 2025 ठीक है ये 2005 की कोई वैल्यू है ये 2025 की कोई वैल्यू है and then we need to find this अच्छा you want me to repeat question 3 बेटे नेट्स का सवाल है नेट्स का सवाल क्या होता है इट्स बेसिकली एन अनपैक्ड शेप ऑफ अ 3D शेप 2D में जब हम कन्वर्ट करते हैं किसी 3D सॉलिड को तो कह रहा है कि हर दो ऑपोजिट साइड्स का सम जो है क्या होगा दैट शुड ऑलवेज बी 7 no matter what ठीक है अच्छा हाउ आर यू गोइंग टू फॉर्म दिस शेप नाउ थिंक अबाउट दिस थिंक अबाउट दिस कि अगर मेरे पास ये इसको मैं बेस कंसिडर कर लूं सो ये चीज इसकी एक वॉल बनेगी राइट दिस शुड बी वन ऑफ द वॉल फॉर दिस बेस दिस शुड बी द अदर वॉल this should be the third wall and this should be the fourth wall which will be surrounding this space do you agree do you get this part yes or no ये बात समझ आई जल्दी से आफरा right and then if these are the four walls ये leftover side क्या होगी this is going to the top of this 3D solid ये shape कौन सा बनाएगा बेटा this is going to form a dice or cube ठीक है अच्छा अब हमारे पास हमने ये समझना है because all the opposite sides sum up to 7 so if this was the wall जो base हमने consider की थी तो top उसका ये वाला होगा इन दोनों का sum should be 7 right so 4 plus 3 that gives us 7 अगर हम ये वाली साइड कंसिडर करते हैं so this and this was supposed to be surrounding walls इसकी opposite wall ये वाली कंसिडर होगी it's going to be 1 plus 6 that gives us 7 and then these are the leftover pairs beta 2 plus 5 that should also give us 7 ठीक है so इस तरीके से हमने values figure out किए चलो now for this scatter diagram it said the value of one of the paintings in 2025 is less than expected draw a circle around the point that represents this painting तो कौन सी वैल्यू है मुझे बताओ कौन सी वैल्यू है ये
which value is the examiner, or which point is the examiner talking about? It says the value of one of the paintings in 2025 is less than expected. जल्दी से बताओ, which point do you think seems to be it? एक्सपेक्टेशन से काफी कम जो है ना आपके पास उसकी पेंटिंग की प्राइस थी. डू यू सी एनी आउटलायर इन दिस केस? कोई आउटलायर दिख रहा है यहाँ पे? 60. सॉरी. सो एग्जामिनर आपको इन अदर वर्ड्स आपसे आउटलायर पूछ रहा है. कैन आई से दिस इज द आउटलायर दैट एग्जिस्ट इन दिस डेटा? क्या ये हमारे पास एक ऐसा डेटा है जो कि आउटलायर है हमारे पास इन द स्कैटर डायग्राम? यस. सो दिस इज गोइंग टू बी द डेटा विच एग्जामिनर इज टॉकिंग अबाउट. आपके पास ये वैसे जनरली इफ यू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन दिस इज समथिंग हाउ इट वुड हैव लुक्ड, बट आपके पास एक ऐसी वैल्यू है जो है एक आउटलायर है, वेरी लेस देन एक्सपेक्टेड था. सो यू आर गोइंग टू ड्रॉ अ सर्कल अराउंड दिस पॉइंट व्हिच इज गोइंग टू बी दिस केस आउटलायर है. ठीक है. अच्छा, अगर हमें स्कैटर्ड वो लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी बनानी होगी, तो मेरी लाइन अगर मुझे बनानी हो, सो दैट विल बी ड्रॉन समथिंग लाइक दिस वेयर आई विल बी स्किपिंग दिस आउटलायर, बिकॉज हमने कहा था इफ यू हैव एनी वैल्यू दैट इज वेरी फार फ्रॉम द अदर डेटा यू कंसिडर दैट इज आउटलायर, एंड उसको आप फिर बेस्ट फिट में काउंट नहीं करते. ठीक है. डोंट डू अ मिस्टेक वेयर यू ड्रॉ अ लाइन समथिंग लाइक दिस या समथिंग लाइक दिस जस्ट टू सैटिस्फाई दिस. आउटलायर्स को हम अपने स्कैटर डायग्राम में कंसिडर नहीं करते. नाउ इट सेज another painting had a value of $75,000 in 2005 and $140,000 in 2025. On the scatter diagram plot this point. So I'm sure we can plot this. ठीक है. So हमारे पास 75,000 2005 में. So 75 कहाँ पे होगा? Can I say this is somewhere we are going to have 75,000? ठीक है. And 2025 में कितना होना चाहिए? तो this should have been 140. So this is 140. So can I plot my point somewhere here that intersects with these two lines? So it should be somewhere here. ठीक है. So this is where we are going to draw. इसके बाद कहते हैं write down the number of paintings which had a value less than 53,000 in 2005. तो मुझे बताओ कि can I say my 53,000 is going to lie somewhere around here, and I wanted all the values that were less than 53,000. So beta less than 53,000 मेरे पास कितना डेटा आ रहा है? Can I say all the values that are on this side? So क्या मैं कह सकता हूँ कि all of these values, ठीक है, and this one as well, all of these values should be less than 53,000? Yes or no? Do we agree with this part? जल्दी से बताओ. Any difficulty with this concept? Yes, sir. Right. So हमारे पास कितनी values है? हमें number of paintings बतानी थी. So these were supposed to be 5 for this case. फिर कहता है what type of correlation is shown on this scatter diagram? So बेटा कौन सी type of correlation नजर आ रही है? जल्दी से बता दो. It's going to be positive correlation. Why? Because हमारे पास जैसे gradient positive होता है, इसके लिए भी आप correlation भी positive होगा. For such cases your correlation is supposed to be negative, and for scattered values there is going to be no correlation. ठीक है. So what will you write? You will write positive correlation. ठीक है. अच्छा, चलो, still lagging? Don't tell me. हाँ, wait, let me close all these. अब थोड़ा बेहतर होगा I believe. चलो. Acha. So question number 8 says that DE is supposed to be 3n minus 4. Find the value of 5D. आपने क्या करना है guys? 5 को multiply करना है along with DE, where the value of DE is what? That is 3n minus 4. So when you multiply this, what are you going to get? 5 times 3, that gives us 15. 5 times 4, that gives us 20. So it should be minus of 20. ठीक है. फिर next part देखो, कहता है find the magnitude of DE. So DE आपके पास क्या था? That was 3n minus 4. आपने root of x square which is 3 square plus of minus 4 square करना है. Still guys, अब इसके बाद I have no option. मैंने LAN भी लगा लिया, मैंने 3 वाईफाई भी चेंज कर लिया. ठीक है. अब इनमें से कुछ भी नहीं चल रहा. So I'm not sure what's the issue. I honestly have no idea what's the issue. नहीं हो रहा. Is it fine now? अब बेहतर है? Can you hear me? 1 2 3 mic testing. Hello. Is it better guys? Just a yes or no should work. बेहतर है? Now it's better. I believe it's better. ठीक है. चलो. So हमारे पास क्या हो जाएगा? This is going to be 9 plus of 16. ठीक है. 9 plus 16 क्या होता है? That is 25. Root of 25 gives us 5. ठीक है. Next part जरा देखो.
हमें कहता है D इज द पॉइंट -2 -3, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट E। क्या हम कर सकते हैं गाइस? डी ई, डू आई नीड टू सॉल्व दिस? डी किसके बराबर होगा इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर? कैन आई से ओ ई माइनस ऑफ ओ डी, वेयर आई एम सपोज टू फाइंड दिस वैल्यू? डी हमारे पास गिवन था ऊपर, विच इज 3n-4, ठीक है, 3n-4 प्लस ऑफ ओ डी कर लोगे, बिकॉज हमें ओ ई चाहिए, सो ओ ई आप इसमें ऐड कर लोगे, OD add कर लोगे, sorry, which is -2 and -3, and you will be able to find OE very easy. We'll skip this part for now, ठीक है, चलो। अच्छा, इंडाइसिस कहता है दिस पेपर इज क्वाइट लेंथी, सो हमें इसको जल्दी जल्दी रैप अप करना है। ये कहता है n of 15 डिवाइडेड बाय n of x इज सपोज टू बी इक्वल्स टू n of 5। कर लोगे? इजी, एक मार्क का, जल्दी से गाइस, कोई एक भी स्टूडेंट यस कहेगा सो आई विल सॉल्व इट, अदरवाइज आई एम गोइंग टू स्किप इट, ठीक है। चलो स्किपिंग, अगर किसी ने करना हो जस्ट लेट मी नो इन द चैट एंड देन वी मूव ऑन, लेट्स ट्राई दिस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 73 पावर 0? दैट गिव्स अस व्हाट? दैट गिव्स अस 1। फिर कहता है 7 टाइम्स ऑफ 7 अपॉन 3 पावर -2, क्या होगा? कैन आई से दिस इज गोइंग टू बी 7 डिवाइडेड बाय 1 ओवर 3 पावर -2। इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे हम? रेसिप्रोकेट, सो क्या हो जाएगा? 7 7 टाइम्स, आप ये कर सकते हो, इसको देखो जरा, 3 पावर 2, ठीक है, सो 7 डिवाइडेड बाय 3 पावर ऑफ 2। अब क्या हो जाएगा? तो ये आपके पास हो जाएगा वैल्यू 7/9 फॉर दिस केस। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, ठीक है। सो आपके पास क्या हो जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी 7/9। फिर कहता है राइट डाउन 27 into 81 square in the form of 3 power n, that means you have to convert all of these values into a base of 3। तो बेटा बेस ऑफ 3 में कन्वर्ट करोगे तो 27 क्या बनेगा? कैन आई से दिस इज गोइंग टू बी 3 क्यूब। बेटा 81 हमारे पास कब बनता है विद बेस ऑफ 3? कैन यू टेल मी, जल्दी से बताओ, 81 कब बनेगा? 3 क्यूब से तो हमारे पास बनता है 27। सो इफ आई मल्टीप्लाई 27 अगेन बाय 3, सो विल दैट गिव मी 81? यस, दैट गिव्स मी 81। इसका मतलब क्या हुआ? कैन आई से दिस इज गोइंग टू बी 3 पावर 4, दैट गिव्स अस 81। डू यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? यस और नो? बिकॉज़ ये 3 क्यूब था, this was 3 Yes, cube sir. multiplied with another 3, that gives us 3 power of 4, and there was another square on this, so ये क्या हो जाएगा? This is 3 into 3 8, and this should be 3 power 11, ठीक है। शजीन सेड ऊपर वाले क्वेश्चन भी करा दें, तो बेटा ये क्या होगा आपका? हो गया n15 divided by nx is equals to n power of 5। बेटा you can swap both places, so क्या हो जाएगा? n15 over n of 5 is equals to n of x। ये दोनों पावर्स क्या हो जाएंगे? आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सो दिस इज गोइंग टू बी n पावर ऑफ n इज इक्वल्स टू n पावर ऑफ x, सो x की वैल्यू हो जाएगी 10। वेरी इजी, ठीक है। चलो इसके बाद दिस इज IGCSE, लेट्स फैक्टर, गाइस आई थिंक वी कैन स्किप दीस क्वेश्चंस, इजाजत है इसमें। मिडिल टर्म ब्रेकिंग है इजी, एंड देन नीचे इज Yes, फैक्टराइजेशन, sir. वेरी इजी क्वेश्चंस। if anyone wants to do these, let me know in the chat, otherwise we are going to move on, ठीक है। अच्छा, कहता है द टेबल शोज 3 सीक्वेंसेस, 3 टाइप ऑफ सीक्वेंसेस है, कंप्लीट द टेबल टू शो द nth टर्म ऑफ ईच सीक्वेंस। कर दें? चलो भाई कर देता है, आज हम 2 घंटे बैठेंगे यहाँ पे। चलो कहाँ गया, कौन सा क्वेश्चन था? फैक्टराइजेशन, विच क्वेश्चन वाज इट? ये वाला, चलो। सो हमारे पास कैसे होगा गाइस? 1 is going to be multiplied with 12, which is going to give us 12। 12 के फैक्टर्स क्या हैं? 1 and 12, 2 and 6, 3 and 4। so बेटा 7 कैसे फॉर्म होगा? 3 and 4 की मदद से फॉर्म होगा। so it's going to be what? It's going to be x square minus 3x minus 4x plus of 12, ठीक है। अब आप कॉमन ले लोगे, so x कॉमन लोगे, so you'll be left with x minus 3। आप -4 कॉमन लोगे, so you'll take x minus 3 as well। since these brackets are same, you're going to write this one's x minus 4 and the other one is going to be x minus of 3, ठीक है। अच्छा, अगर हम इस पार्ट को सॉल्व करें, अब ये पार्ट कैसे सॉल्व होगा? जल्दी से बताओ, व्हाट आर यू गोइंग टू डू फॉर दिस वन? अच्छा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास अब वी हैव न्यूमरस ऑप्शंस। अगर मैं यहाँ पे देखूं, कैन आई टेक एनीथिंग इज कॉमन? द ओनली थिंग दैट आई कैन टेक एज कॉमन इज गोइंग टू बी 5, बट देन वी विल बी लेफ्ट विद x and y inside। so is this a nice option to do? अगर मैं यहाँ पे 5 कॉमन ले लूं, we will be left with what? x plus 2y, ठीक है। अच्छा, फिर अगर हम इस चीज में से कॉमन लेंगे, इसमें से हम क्या चीज कॉमन ले सकते हैं? वी कैन टेक 3n कॉमन, ठीक है। इफ आई टेक 3n कॉमन प्लस 3n, व्हाट विल वी बी लेफ्ट व्हाट विल वी बी लेफ्ट विद? कैन आई से वी विल बी लेफ्ट विद
3n common लिया, so we'll be left with 2y, so that should be 6ny, correct. And then हमने 3n common लिया, so again we'll be left with x. ठीक है, so this is what we're left with. We again have two brackets which are same, hence we are doing it correctly, and this value you will be writing 1. So this is going to be 5 plus of 3n and 2y plus of x. This is what you can do. अगर आपके पास कभी इसके फैक्टर्स डायरेक्टली फॉर्म ना हो रहे हो, सो ट्राई टू स्विच प्लेसेस. आप इन दोनों को साथ सॉल्व कर लो, इन दोनों को साथ सॉल्व कर लो, सो ईदर वेज यू विल बी एबल टू फाइंड द फैक्टर्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 16 says find the nth term. बेटा nth term कैसे होगी? व्हाट टाइप ऑफ सीक्वेंस इज दिस? जल्दी से बता दो, कैसी सीक्वेंस है ये? दिस इज व्हाट टाइप ऑफ सीक्वेंस? कैसी कैसी? Arithmetic. अरिथमेटिक बेटा. सो अरिथमेटिक के Arithmetic. पास कॉमन डिफरेंस क्या है? इट्स ऑफ throughout it's going to be 5. 5. Linear sequence, arithmetic sequence, कुछ भी कह लो, where the difference is 5, the first value is a, first value is 5. ठीक है, हमें nth term बतानी है बच्चे. You're supposed to tell the nth term, not the fifth term. So a क्या है? a हमारे पास है 8 and d is what? d is of plus 5. Formula क्या हमारे पास? a plus n minus 1 times of d, where the value of a is what? That is 8. So ये क्या होगा? This is going to be 8 plus n minus 1 times of 5, and this is going to be 8 plus 5n minus of 5. बेटा ये हमारे पास 8 minus 5 करेंगे, this is 3, so 5n plus of 3. ठीक है. अच्छा, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद नेक्स्ट सीक्वेंस कैसे सॉल्व करोगे? फटाफट बताओ. दिस इज अ बिट ऑफ लॉजिक बेस्ड, या अगर आप थोड़ा सा सोचो तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो. अब इस सीक्वेंस को कैसे सॉल्व करोगे? डू यू रिमेंबर डूइंग एनी सच एग्जांपल्स अर्लियर? फटाफट बताओ क्या करोगे इसके लिए. व्हाट आर यू गोइंग टू डू फॉर दिस पार्ट? क्या करेंगे इस पार्ट में? फटाफट बताएं. व्हाट विल वी डू फॉर दिस पार्ट? एनी आइडिया? Anyone? No idea? Convert decimal then? No. नो, डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना. अगर आपको याद हो, हमने कहा था हम न्यूमरेटर को अलग सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर को अलग सॉल्व करेंगे, राइट? दैट इज व्हाट वी डिस्कस्ड. नाउ थिंक अबाउट दिस. ये आप अरिथमेटिक के तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, लॉजिक बेस्ड भी कर सकते हैं. नाउ इफ माय फर्स्ट टर्म, दिस वाज माय फर्स्ट टर्म, this was my second term, this was my third term, this was my fourth term, and this was my fifth term. Now think about this, कि अगर मेरी value of n 1 है, if my value for n is 1, what number do I get? I get 3. If my value of n is 2, what number do I get? I get value 4. If my value of n is 3, it turns out to be 5. So beta, what's the difference throughout? कैसे इसको मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ न्यूमरेटर को? If I just talk about the numerator, what is it going to be? क्या होगा ये? Do you see that these, all of these have a difference of what along with n? n के साथ क्या difference है इनका? Guys, come on, it's not that difficult. What is the difference between these two numbers? 2. So can I say ये हमारे पास क्या होगा sequence? This sequence in the numerator is going to be what? In the numerator, I can say this is n plus 2. Is it too difficult to comprehend? फटाफट बताओ, यहाँ पे कोई मसला? Any difficulty with this concept? Any difficulty for the numerator part? I believe no, right? Now think about the denominator. अगर मैं denominator में देखूं क्या difference है मेरे पास n के साथ consecutively, हर जगह same है, common difference है. What's the difference in the denominator? So shouldn't that be n plus 1, guys? Was it too difficult to find out? The final answer might be looking very difficult, but if you think about this, this is very easy if you do it logically and you break it into parts. But अगर फिर भी problem हो रही है, you can still do one more thing. क्या कर सकते हो आप? numerator को अगर आप देखो, so is the numerator वाला sequence acting as arithmetic sequence? Yes it is. तो आप ऊपर अलग से arithmetic sequence apply करो, नीचे दोबारा से arithmetic sequence apply करो, and then keep it in the numerator and denominator separately. But I believe arithmetic से करने से भी ज़्यादा आसान, it was logic based, because इसमें you can easily add just value जो भी आपका difference है, which was 2 or 1. ठीक है? So that's what you're going to do. अच्छा, हमने अभी सिर्फ part 1 and part 2 करना है, because part 3 आपके पास शायद IGCSE वाले students के लिए, so we'll not do it now. ठीक है? चलो, this is for IGCSE. Let's solve this part. कहता है shade the region in each Venn diagram. We are supposed to do A intersection B prime. बेटा part B is important. A intersection B prime का मतलब क्या है? What is A intersection B first of all? Can I say this region is represented by A intersection B? Yes or no? Is this A intersection B?
Yes, do we agree? So do we need this value or we don't need this value? जल्दी से बताओ, क्या हमें ये चाहिए या हमें नहीं चाहिए ये? We don't. We don't. We don't need this because we want a prime of A intersection B. So this is what you're going to sheet. I hope it's clear. ठीक है, चलो. After that, what are we going to do? You erase this value. इसको erase कर लेना अगर आपने बनाया हो, because that's the only thing that we're supposed to draw. फिर अब this is going to be nice. C union D intersection with E prime. क्या करोगे? Multiple methods सीखे हमने, numbering वाला भी सीखा है हमने, dot and tick वाला भी सीखा है. So whatever you like, you can try it. Now for this one, if you ask me, I'll probably go for the dot and tick method. क्या मतलब, इस C union D को मैं easily identify कर सकता हूँ और E को भी कर सकता हूँ. So tell me, what is C union D? Can I say combination of C and D? That means C or D is going to mean C union D. Do we agree with this? क्या हम इस बात से agree करते हैं? This is C union D. Yes or no? Do we agree with this part? जल्दी से बता दो. Yes or no? Do we agree that this is C union D, guys? Come on, jaldi se. Why are you guys not responding today? Yes. So बेटा इन सारे regions को हम dot लगा देंगे. इसका मतलब this region is represented by C union D. All of the regions represented by this part. And then we are talking about E prime. So E prime का क्या मतलब है? Do we need E or we don't need E? क्या हमें ये region चाहिए या नहीं चाहिए? Do we need this? No. We don't need this. So we are going to tick on everything except for E, which means these parts. Are we done? डॉट एंड टिक हो गया. अब आपने क्या करना है, अभी इस बात को समझो कि इन दोनों के दरमियान क्या था, इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन था. एंड व्हाट इज मेंट बाय इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन फॉर दिस केस मींस ऑल द साइंस. बेटा सारे साइंस वाला डॉट एंड टिक कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, जल्दी से देखो. कैन आई से इट वाज ऑन दिस रीजन, यहाँ पे भी था, ठीक है, यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी था. सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू शेड. इज दिस पार्ट क्लियर? यस और नो? जल्दी से बताओ. एनी डिफिकल्टी विद दिस कॉन्सेप्ट? कोई मसला यहाँ पे? एनी डिफिकल्टी सो फार? ठीक है, चलो आगे बढ़ो. नाउ दिस वाज रिकरिंग डेसिमल्स, ये भी हम कर सकते हैं. रिकरिंग डेसिमल्स कैसे होगा, जल्दी से देखो. वील से दैट दिस इज गोइंग टू बी x इज इक्वल्स टू 0.114 where this pattern is recurring. ठीक है, ये पैटर्न आपके पास रिकरिंग है. इसको डिफ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे? आई जस्ट टेल यू व्हाट टू डू एंड यू कैन सॉल्व दिस. बेटा हमारे पास दिस वाज सपोज्ड टू बी मल्टीप्लाइड विथ व्हाट? एक डेसिमल प्लेस एंड 3 decimal places. तो बेटा 3 decimal place और 1 decimal place का मतलब क्या है? For 1 decimal place you are supposed to multiply this equation with what? 10. ठीक है, and for 3 decimal places you are supposed to multiply this what? You're supposed to multiply this with 1000. तो आप इन दोनों इक्वेशंस को 10 और 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हो. 10 से करोगे so this will be 10x is equals to 1.14 recurring pattern, and then 3 decimal place पे करोगे so 1000x is equals to 114.14. Is this part clear, guys? Can you subtract these two to form a fraction? अब हो जाएगा, अब कर लोगे, ठीक है. Just subtract these two to form a fraction from this. Now अगर हम ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, this is easy as well. हमारे पास कहते थे डायग्राम shows a cyclic quadrilateral with the ratio p and m being 2 and 3. इसका मतलब क्या है, जो रेशियो p और m है ये 2 and 3 है. So हम क्या कह सकते हैं, can we say that the sum of these two values is supposed to be 180? Yes or no? Do we get this part? Yes or no? कह सकते हैं? Yes. So can I say ये दोनों portions मिलाकर 5 है, right? 2 plus 3, that means this sums up to 5 portions where this p is supposed to be 2 over 5 of 180. ठीक है, and m क्या होगा बेटा? m is supposed to be 3 over 5 of 180. जल्दी से मुझे values बताओ क्या आ रही हैं ये. What are these values? What are these values? क्या values हैं? This is 5, 36, 36 into 2. I think this is going to be 72 and this is going to be 108. 108. चलो 108. ठीक है. So अगर मेरे पास m 108 है, why are you multiplying? बेटा रेशियोज का कॉन्सेप्ट, ये बच्चे 2 है, ये बच्चे 3 है, इन दोनों का सम 180 है. पैसे याद है कैसे डिवाइड किए थे हमने वेक्टर्स में, कि लेट्स जस्ट से देयर इज 180 रुपीस दैट यू आर सपोज्ड टू डिवाइड बिटवीन 2 सिबलिंग्स एंड द शेयर ऑफ देम इज 2 and 3. 2:3 में शेयर है. तो इसका शेयर कैसे पता चलेगा? वाज़न्ट दैट सपोज्ड टू बी 2 पोर्शंस आउट ऑफ 5 पोर्शंस इन टोटल? नहीं किया है बा? यस और नो? आई होप क्लियर हो जाएगा इसके बाद. ठीक है, वही किया हमने. अच्छा, अब इसके बाद you're supposed to find the value of y. Beta y की value क्या होगी? Can I again say that this is going to be cyclic quadrilateral where
It's supposed to be y plus m plus 10 is supposed to be equivalent to 180 degrees, and you know the value of m to be 108, which you're going to plug in. ठीक है, so आप इसका आंसर निकाल सकते हो, y plus 108 plus of 10 is equals to 180, and you can find the value of y for this part. ठीक है, so that's what you're going to do. चलो अब इसके बाद, हाँ, सेट्स करना है, स्किप करें, जल्दी से बताओ, वेरी इजी, वांट टू डू इट, यस और नो, यस और नो, फटाफट, नो, कर लें, लो भाई। सो कैसे होगा बेटा, दिस इज 5 क्यूब 125, 5 क्यूब होता है, इसका मतलब क्या है, 5 into 5 माइनस, गाइज एवरीबडी इज अ स्टूडेंट, वी नीड टू एवरीबडी इक्वली, सो as much as I don't want to do it, but we'll have to do it. चलो इसके बाद क्या है बेटा, 20 के जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाए, होगा ये 2, so it should be I think 4 times of 5, right? So 2 into 10 and 2 into 5 and then 5 and 1. So इसका क्या मतलब है, 2 2 and 5, जहाँ पे ये पेयर बना, ये पेयर बना, so what will this become, this is going to be 5 root of 5 minus of 2 root of 5, and this should give us 3 root of 5. ठीक है, इसके बाद कहते हैं वर्क आउट द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल के। बेटा एरिया कैसे निकलेगा, दिस वैल्यू सपोज टू बी मल्टीप्लाइड विद दिस वैल्यू बिकॉज इट्स रेक्टेंगल, सो इट्स गोइंग टू बी 3 रूट ऑफ 8 टाइम्स ऑफ 2 रूट ऑफ 2। सो हमारे पास, हाउ कैन दिस बी सॉल्व्ड, जल्दी से बताओ, कैन आई से कि हमारे पास this can be solved in a way where 3 and 2 will be multiplied, ठीक है, 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे और इनसाइड द रूट वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, so this is going to be 6 times of 8 into 2, so 8 into 2 is what, that is 16, so 6 times of root of 16, root of 16 is what, that gives us 4, so beta 6 times of 4 क्या होगा, that is going to be 24 centimeter squares. I hope this part is clear. ठीक है, rationalization की बात करते हैं, can we do this guys, yes या कर दूं, जल्दी से बताओ, स्किप, इजाजत है, स्किप रैशनलाइजेशन, ठीक है, सो यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई विथ अ नेगेटिव साइन, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई भी करोगे और डिवाइड भी करोगे, मेक श्योर यू डू इट प्रॉपर्ली एंड अप्लाई थर्ड आइडेंटिटी इन द डिनोमिनेटर। ठीक है, फिर हम ये वाले क्वेश्चंस बता दो, पार्ट ए एंड बी, इजी और नो, इजी, जल्दी से, इजी, यस और नो, स्किप स्किप, चलो स्किप, आई बिलीव स्किप, ठीक है, एंड देन साइमल्टेनियस को स्किप करो, ये because mostly IGCSE में आता है, but if you want to do it, what are you going to do, you're going to simplify. O levels में काफी कम टेस्ट होता है इस टाइप की simultaneous, y is equal to 3x minus 2, and then ये वाला हो जाएगा y is equals to x square minus of 8x plus of 22. बेटा ये part is supposed to be equal to this part, why, because you're using substitution, so आपके पास होगा 3x minus 2 is equals to x square minus of 8x plus of 22. ठीक है, and when you solve this part further, this will be x square minus 8x minus of 3x plus of 22 plus of 2, and this turns out to be x square minus of 11x plus of 24 is equals to 0. Now this turns out to be quadratic, and you can solve it using quadratic formula, and you can easily find out two values of x and then two corresponding values of y by plugging those values back into any of these equations. ठीक है, चलो, this one seems to be easy as well. Do you want me to do it? जल्दी से बता दो, थर्ड आइडेंटिटी इन द डिनोमिनेटर, ऊपर आप क्या करोगे, ऊपर आप मिडिल टर्म करोगे, नीचे आप थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई करोगे, एंड यू कैन सिंप्लीफाई एंड फैक्टराइज दीज क्वेश्चंस। ठीक है, अच्छा, so with that being said, we are done with the first attempt. Let's move on to slightly difficult questions of the paper and let's see how it goes. अच्छा, not difficult, but जिसमें शायद थोड़ा reading time भी required होगा. So it says a rectangle measures 5 by 19 centimeter. Two of these rectangles are joined to make a shape. बेटा ये दोनों rectangles क्या है, same है, but we are supposed to work out the perimeter. So can I say this side is supposed to be 19, this side is supposed to be 19, this side is supposed to be 19. Any difficulty with this part? जल्दी से बताओ, कोई मसला है यहाँ पे? Any difficulty? Right? एंड हमारे पास पेरीमीटर होता है कि, पहले इस बात को समझो कि पेरीमीटर इज सपोज टू बी द सम ऑफ ऑल द आउटर साइड्स, एंड सारी आउटर साइड्स की वैल्यू को फाइंड करना है बेटा, वेयर दिस पार्ट विल बी 5, दिस पार्ट विल बी 5 एंड दिस पार्ट विल बी 5. सो हमारे पास क्या होगा, इसको जल्दी से देखो, और यहाँ पे ये वैल्यू एंड ये वैल्यू अभी भी मिसिंग है. ठीक है, 5 into 19, आई एम नॉट श्योर व्हाई वुड यू डू 5 into 19.
हम एरिया नहीं फाइंड कर रहे, ठीक है। अच्छा, अब नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दीज वैल्यूज आर स्टिल मिसिंग। अब इसको कैसे निकालोगे, कहना है से दिस इज गोइंग टू बी 19 माइनस ऑफ 5, ठीक है, ये वैल्यू मिसिंग, शाबाश। सो 19 माइनस ऑफ 5 दैट इज 14, सो सम ऑफ दीज टू साइड इज गोइंग टू बी 14, और इन अदर वर्ड्स 7 and 7, ठीक है। सो आप ये भी कर सकते हो। नाउ यू ऐड ऑल ऑफ दीज वैल्यूज एंड यू फाइंड द आंसर। आई एम श्योर यू आर स्मार्ट इनफ टू ऐड दीज वैल्यूज, यू डोंट नीड हेल्प इन दिस पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, कहते हैं द डायग्राम शोज अ रेक्टेंगल ABCDEFG is an equilateral triangle that touches the rectangle at F and G। बेटा ये equilateral triangle है, ठीक है। फिर कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y। सो हमने फाइंड करना है x और y। हाउ आर यू गोइंग टू सॉल्व दिस? इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में हमें क्या पता होता है? व्हाट डू वी नो अबाउट इक्विलेटरल ट्रायंगल्स? क्या पता है इसके बारे में? इसके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, इक्वल होते हैं, और कितने डिग्रीज होते हैं? 60 डिग्रीज होते हैं। सो आई कैन से दिस इज 60, this is 60 and this is 60। while we write this seems to have helped us a lot, ठीक है। क्या चीज हमें पता चल गई? we already know that the sum for this side is going to be what? The sum is going to be 180। so can I say 12 plus of 60 plus of x should be equivalent to 180 degrees? Can we do that? Yes or no? ठीक है। 72 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? दैट टर्न्स आउट टू बी 108 आई बिलीव। नाउ कंसीडरिंग दिस टू बी 108, y क्या होगा? फटाफट बताओ, व्हाट इज y गोइंग टू बी? y क्या होगा? दैट इज गोइंग टू बी, इट्स अ रेक्टेंगल, 180 माइनस ऑफ व्हाट? शाबाश, why? because this gives us what? This gives us co-interior angles, rectangle में parallel होता है, which gives us 72। good job, ठीक है। so 180 minus 108 that gives us 72। now अच्छा, हमने ये वाले स्किप किए। क्या क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? कहता है द सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 10 इज 17। फाइंड द सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स व्हिच आर लेस देन 16। क्या करोगे? जल्दी से देखो, हमारे पास सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 10। बेटा लेस देन 10 वाले कौन से नंबर्स होते हैं प्राइम? जरा देखते हैं। वी हैव 2, वी हैव 3, वी हैव 5, वी हैव 7, एंड व्हाट एल्स डू वी हैव? वी हैव ये लेस देन 10 के हो गए। अगर हम इसका सम करके देखेंगे, सो दिस गिव्स अस 17। दैट इज करेक्ट, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर कहता है फाइंड द सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 16। तो बेटा और कौन से प्राइम नंबर्स है जो हमारे पास यहाँ पे कहीं आएंगे, जो 16 से छोटे होंगे? व्हाट प्राइम नंबर्स डू वी हैव आफ्टर 7? इज 8 अ प्राइम नंबर? नो। इज 11 13? शाबाश। सो 11 एंड 13। इसके अलावा कोई है? 10 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है। सो यू जस्ट ऐड दीज नंबर्स एंड यू आर वेरी स्मार्ट इनफ टू फाइंड आउट द सम फॉर दिस केस, ठीक है। फिर कहता है x इज एन इंटीजर। x एक ऐसा इंटीजर है जहां पे द सम ऑफ द प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 6। ग्रेटर देन 6 का मतलब यहां से आगे, ठीक है। द ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन x इज इक्वल टू 18। सो इसका मतलब क्या है? 7, 11 और कुछ इन सारे नंबर्स को जब हम ऐड करते जाएंगे, सो ये सम 18 बनना चाहिए। तो मुझे बताओ, कैन आई से 18 सम मेरे पास कहां पे बनेगा? कैन आई से सम 18 विल बी फॉर्म विद द हेल्प ऑफ दीज टू? डू वी एग्री? यस और नो? डू वी एग्री? यस। अब कहते हैं Yes. फाइंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। x क्या था? वो एक ऐसा इंटीजर था जो कि यहाँ पे कहीं लाई करता था, समवेयर हियर। सो व्हाट इज दैट इंटीजर गोइंग टू बी? सो कैन आई से दैट शुड बी 12? डू वी एग्री विद दिस पार्ट? यस और नो? नाउ सम ऑफ यू माइट बी थिंकिंग सर 13 क्यों नहीं? 13 भी तो हो सकता है। सो बेटा आई थिंक इसमें एग्जामिनर ने आपको ऑप्शन दिया हुआ होगा, तो आपके पास 12 एंड 13 बोथ शुड बी करेक्ट फॉर दिस पार्ट फ्रॉम व्हाट आई बिलीव। लेट मी सी, this was question 7B, राइट? ठीक है, एग्जामिनर ने 12 एंड 13 इसमें दोनों करेक्ट ऑप्शंस दिए हैं। इफ यू राइट 12 यू आर गोना गेट मार्क्स, इफ यू राइट 13 दैट इज गोइंग टू बी करेक्ट एज वेल, ठीक है। चलो इसके बाद let's solve this। कहता है Sarah rolls a fair six-sided dice twice। Find the probability that she rolls a number greater than 4 both times। So इसका मतलब क्या है? हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं जो greater than 4 होते हैं ना dice? So can I say it's going to be 5 and 6? So how many options are these? What is going to be the probability of one such case? Can I say it's going to be 2/6 for one such dice? But आपके पास दो बार चाहिए थे ये greater than 14। इसका मतलब क्या है? Sarah rolls a fair dice, find the probability that she twice, ठीक है, ये given है twice। Sarah rolls a fair six-sided dice twice। इसका मतलब ये है कि you're supposed to do probability of greater than 4 multiplied with probability of greater than 4, ठीक है। सो मेरे पास क्या होगा? Can I say it's going to be 2/6 into 2/6?
which is going to be 4 over of 36. ठीक है, चलो 12 नहीं होगा बच्चे, मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐड नहीं हो रहे नीचे. So that's what you're going to do, or you can simplify this as well to 1 over 9. That's what you can do. चलो, now this is a very interesting question. Circle properties, although I feel circle properties हम जब करते हैं, so we are very comfortable with questions, आसान होते हैं. I'd want you to think about this and let me know. I'll give you a few minutes. सोचो जरा इस बारे में कैसे होगा. मैं सवाल पढ़ लेता हूँ. It says A, B, C, D are points on the circumference. तो बेटा A, B, C और D are points on the circumference and this is my center O. फिर कहता है ED and EB are tangents. बेटा ED और EB दोनों tangents हैं. कहता है एंगल AOD is 44. So AOD this is 44. कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x. अब ये x कैसे निकालोगे, जल्दी से सोचो इस बारे में. What are you going to do for this part? What do we know? एक और चीज आई थिंक कही एग्जामिनर ने, AC is parallel to EB. ये कहा एग्जामिनर ने कि जो AC है EB के parallel, although it does not look to be parallel, but because this is not drawn to scale and then examiner has mentioned it, so it's going to be parallel even if it doesn't look visually. Two tangent joined together to make 180, right? Two tangent joined together to make 180. 180 कहाँ पे? 180 कहाँ पे? E पे. So you're saying this is going to be 180 over here? No, that's not what we've learned. That's not correct. What are we going to do? बताओ जल्दी से, क्या कर सकते हैं हम? Tell me फटाफट. जल्दी से बताओ. Alternate angles. Alternate angles where? I believe you're saying that this should be alternate somewhere. Is this what you're saying? Is this what you're saying बच्चे? ठीक है, फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? चलो मान लिया, अब क्या करेंगे? वी स्टिल डोंट नो एनीथिंग. सर आप पूरा ओ एंगल फाइंड कर लें. सो पूरा ओ एंगल क्या होगा? व्हाट इफ 360 होगा पूरा, और लाइक AC वो स्ट्रेट लाइन है तो 180 है बेसिकली. हम तब भी पूरा नहीं आ सकता. रेडियस एंड टेंजेंट मेक 90. चलो रेडियस एंड टेंजेंट मेक 90. चलो यहाँ पे भी 90 हो गई, यहाँ पे भी 90 हो गया. अब क्या होगा? फिर हो गया. फिर AC एंड EB आर पैरेलल and OB makes it perpendicular, so they are equally. AC and EB are parallel. AC and EB are parallel. ठीक है, फिर and OB makes 180 minus 44. हाँ, बता दूं? शुड आई हेल्प यू आउट या करेंगे इसको खुद से ट्राई? जल्दी से सर बताओ. थोड़ा वेट कर लें, सॉरी थोड़ी देर सर वेट कर लें. बेटा, इतना टाइम तो नहीं है हमारे पास. या इसको कहते हो तो मैं होमवर्क दे देता हूँ. टाइम ले लो, इसको हम कल कर लेंगे. ऐसा कर सकते हैं बिकॉज दिस इज अ नाइस क्वेश्चन. आई वांट यू गाइस टू थिंक ऑन दिस. अभी कहते थे मैं अभी सॉल्व करा देता हूँ, वरना कल क्लास के स्टार्ट में मैं करा सकता हूँ. व्हाटएवर यू वांटेड. अभी करना है? राइट नाउ? राइट नाउ चलो अभी कर लेते हैं. लेट्स डू इट. मैं करा रहा हूँ फिर. अच्छा जरा इस बात को समझो. इस बात को समझो. आपने बताया कि ये साइड पैरेलल है, ठीक है. देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग दिस. हमारे पास ये साइड पैरेलल है टू दिस साइड वेयर यू ऑलरेडी टोल्ड दिस टू बी 90 डिग्री. सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस साइड बच्चे? सो ये मेरे पास क्या होगा? कैन आई से दिस इज गोइंग टू बी 90 एज वेल, को इंटीरियर एंगल्स. डू वी एग्री? यस और नो? ठीक है. डू वी एग्री? नाउ देयर कुड बी मल्टीपल वेज ऑफ सॉल्विंग दिस. एक तो आप ये कर सकते हो, आप कह सकते हो बिकॉज ये और ये 90 और 90 है और ये पूरा 360 होने वाला था, सो कैन आई से दीज शुड बी इक्विवेलेंट टू 180 इन टोटल. डू वी एग्री विद दिस कि ये दो साइड 180 के बराबर होंगे बिकॉज दीज आर ऑलरेडी 180 which would sum up to 360. Do you agree what I'm saying? Do you understand? So can I say this is also x because of the property that we've learned, those similar triangles wali? I'm sure you must have gone through that property. Let me show you the property that I'm talking about. सर्कल प्रॉपर्टीज की एक सबसे लास्ट में हमने टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी डिस्कस की थी समवेयर हियर, जहां पे हमने कहा था एग्जामिनर कभी कभार बहुत तंग करता है जहां पे दो इक्वल ट्रायंगल्स बनते हैं, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं. ठीक है. सो दिस इज दैट केस. आज हम पहली बार शायद देखने वाली प्रॉपर्टी. सो हमारे पास, ठीक है. सो हमने अब क्या करना है, कहां गए?
Here we go. ठीक है. Now what are we going to do? Can I say this value plus this value is supposed to be equivalent to 180 degrees? So you're going to say 2x plus of इस x को भूल जाओ because you're already covering all the angles over here. 90 plus 44. So 2x plus 90 plus 44 is supposed to be equivalent to 180 degrees, and you can find the value of x from here. ठीक है. So 180 minus of 90 minus of 44 divided by 2, and you should be able to find the value of x. And imagine examiner ने 4 marks दिए थे. One more approach, एक और approach देखो. ठीक है. एक और approach से बताता हूँ, जरा इसको देखो. हमारे पास can I say that क्या कह रहा था मैं, मुझे नहीं पता मैं क्या कह रहा था, मुझे भुलवा दिया. हाँ, सी हैव अ लुक एट दिस. अभी थोड़ी देर पहले हिबा ने आई थिंक बताया कि दिस इज सपोज टू बी एक्स यूजिंग ऑल्टरनेट एंगल्स. ठीक है. अगर ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, सो ये एक्स है. हमने ये भी डिस्कस किया कि दिस एंड दिस शुड बी इक्वल, व्हिच मींस दिस इज एक्स एज वेल. नाउ हैव अ लुक एट दिस ट्रायंगल इंडिविजुअली. अगर मैं इस ट्रायंगल पे देखूं, कैन आई से दिस ट्रायंगल शुड गिव अस 180 is supposed to be equivalent to x plus x. ठीक है. x plus x plus of 44 and plus of 90, where you can find the value of x. अब कर सकते हो, ये भी एक तरीका है, अप्रोच है सॉल्व करने की, where you're considering this to be a right angle triangle. So आप यहाँ पे इस अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते. You can use any of the two ways to find the value of x, and the examiner has given you 4 marks. The working is very easy. वर्किंग इटसेल्फ अगर आप देखोगे तो इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बट एग्जामिनर से आपकी अप्रोच के और सोचने के 4 नंबर दिए, विच आई बिलीव दोनों एक ही बातें हैं, दोनों एक ही बात है. सो यू कैन सॉल्व विथ एनी ऑफ द वेज दैट यू लाइक. ठीक है. अच्छा, सो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस. अब आगे देखते हैं आगे क्या कहता है. दिस वील skip IGCSE questions. Let's try this one. शजीन देख लो बच्चे. बेटा हमने क्या कहा, ये देखो. हमने कहा द सम ऑफ दिस एंड दिस शुड बी 180. व्हाई? बिकॉज ये पूरा 360 ऑलरेडी. 360 में ये 90 और 90 था, विच इज 180. सो 360 माइनस ऑफ 180, दैट गिव्स मी 180. दैट मींस सम ऑफ दीज एंगल्स इज सपोज्ड टू बी 180. बस ये किया हमने. यहाँ पे ये एंगल हमने 90 कंसीडर किया था. दैट्स अबाउट इट. ठीक है. चलो. Acha. So question number 19 says the diagram shows a circle with center O and radius 12. Work out the area of minor sector. Area निकाल सकते हैं, which is going to be 60 over 360 times of what? Pi r square, where the value of r is going to be what? Value of r is going to be 12. So you're going to say this is 1 over 6 times of pi times of 12 square, which is 144. You'll solve it and find the value and write it over here. Now the next part says calculate the length of major arc AB. Beta, length of major arc AB क्या होगा? Is it this length which the examiner is talking about? फटाफट बताओ. Is this the arc length that the examiner is concerned about? So the answer is no. This is my minor arc. ये minor है. Major क्या होगा बेटा? This is major. So major की arc length क्या होगी? This is going to be the arc length for major, जो कि कुछ इस तरीके से होगा. और इसकी length क्या, angle क्या होगा? The angle is supposed to be 300 for this one. ठीक है. So what are you going to do? 300 शाबाश over 360 times of arc length का formula है 2 pi r, where the value of r is going to be 12, and you can solve it to find it for 3 marks. चलो. इसके बाद this question, it says the equation of L is this. ठीक है. Find an equation of the line perpendicular to L that passes through this point. So what do we know about perpendicular lines? Perpendicular lines के बारे में क्या पता है? ग्रेडियंट रेसिप्रोकल ले लेते हैं. तो इसका ग्रेडियंट क्या है? What is the gradient over here? अब्दुल्ला नवीद बिल्कुल 90 डिग्री तो है. हाँ, इसका ग्रेडियंट -1/2 था. ठीक है. अच्छा अब्दुल्ला नबी, हमें पता तो है 90 डिग्रीज है, बट हमें ये चीज समझनी है कि फॉर द केस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इनके ग्रेडियंट पे क्या इफेक्ट होगा. सो देयर गोइंग टू बी नेगेटिव रेसिप्रोकल. सो दैट शुड बी योर आंसर. ठीक है. सो हमारे पास m of l is what? That is -1/2. So what is going to be the gradient of this new line? Negative reciprocal, reciprocated, so it becomes 2 over 1 with a different side. So the new m is going to be 2. ठीक है. फिर हमें कहता है the equation for this line will turn out to be y is equals to 2x plus of c. बट कहता है find an equation of the line perpendicular to L that passes from 3 and 5. तो बेटा c को कैसे find करेंगे? Can I say in order to find c I'll have to plug in values of y and x, and these should be those coordinates which exist or lie on this line, जो कि हमारे पास already examiner ने दिया हुआ है. So it's going to be 5 is equals to 2 times of 3 plus of c. So this is 5 minus of 6 is equals to c, and c is going to be -1. So this is going to be y is equals to 2x minus 1. ठीक है. चलो अब इसके बाद आगे करके देखते हैं.
Hmm. Workout theory, IGCSE. This is IGCSE. Why is this IGCSE? Although this is part of your syllabus O levels, but ये बगैर calculator के आप लोग attempt नहीं कर सकते. So this is going to be for IGCSE. अच्छा, सिर्फ let's just try part A. We'll only be trying part A. Part 2 is again for IGCSE. इस पेपर में IGCSE only content बहुत ज़्यादा है. Now it says a Mahir picks one number at random from the numbers 5, 10 and 15. ठीक है, ये 5, 10 and 15 है first number. फिर कहता है he then picks one number at random from the numbers 4, 5 and 6. So 4, 5 and 6 दूसरे numbers है. कहता है he adds the two numbers, the sample space in the diagram shows some of the possible outcomes इनकी addition के. ठीक है, ठीक है. अच्छा जरा देखो, I'm not sure what you're saying. हाँ वो लगा लेते बिल्कुल. So हमारे पास इन दोनों नंबर्स को ऐड करके आंसर क्या है? इट्स सपोज टू बी 9. सो 10 और 4 को ऐड करके क्या आएगा? 14. 5 और 4 को ऐड करके आएगा 19. सो दिस इज हाउ वी हैव टू ऐड दिस. तो मेरे पास इन दोनों स्पेसेस के आंसर बता दो क्या आएंगे. व्हाट इज द आंसर गोइंग टू बी? पॉसिबिलिटी डायग्राम 10 की or जो हमने 11. एग्जांपल्स की थी. 10 आई and कांट 11. हियर. 10 एंड 11. ठीक है, 10 एंड 11. करेक्ट करेक्ट, गुड जॉब. ठीक है. अच्छा इसके बाद क्या होगा गाइस? इज माय इंटरनेट वर्किंग फाइन? आई थिंक इशू कर रहा है या फाइन है? इट्स फाइन. चलो फिर हमने ये क्वेश्चन स्किप किए थे. लेट्स मूव ऑन टू दिस वन. दिस इज नाइस. मेंसुरेशन का. अच्छा, इन दिस क्वेश्चन ऑल द मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर्स. गौर से देखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है. इट सेज अ सॉलिड ए इज मेड फ्रॉम सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर. ठीक है, एक सिलेंडर है और एक हेमिस्फीयर है. इन दोनों के कॉम्बिनेशन से सॉलिड ए बना है. बोथ ऑफ रेडियस 2r. मतलब ये रेडियस 2r है फॉर द हेमिस्फीयर एंड फॉर द केस ऑफ सिलेंडर बोथ. फिर क्या कहता है? सॉलिड बी इज अ कोन ऑफ रेडियस आर. बेटा एक कोन है, उसका रेडियस क्या है? दैट इज आर. इट सेज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड ए इज इक्वल टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड बी. फाइंड आर इन टर्म्स ऑफ एक्स. द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू आस्क इज हाउ मेनी सरफेसेस आर देयर गोइंग टू बी फॉर दिस केस. सॉलिड ए में कितनी सरफेसेस होंगी? जल्दी से बताओ, कितनी सरफेसेस हैं सॉलिड ए में? 3. 3. गुड. 3 कैसे? कैन आई से अ सर्कल व्हिच इज गोइंग टू बी पाई आर स्क्वायर. करते जाएंगे साथ साथ वर्किंग. पाई आर स्क्वायर प्लस द कर्व सरफेस एरिया. कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला था 2 पाई आर एच. ठीक है, 2 पाई आर एच प्लस द एरिया ऑफ हेमिस्फेयर. बेटा स्फेयर का है एरिया होता है, एरिया फॉर स्फेयर इज व्हाट? दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर. सो हेमिस्फेयर का क्या हो जाएगा? कैन आई से इट्स गोइंग टू बी 2 पाई आर स्क्वायर. डू वी एग्री विद दिस? यस और नो? एनी प्रॉब्लम विद दिस पार्ट? यस और नो? एनी डिफिकल्टी? एनी डिफिकल्टी? ठीक है. फिर सॉलिड बी का एरिया आपने निकालना है. सॉलिड बी का एरिया क्या होता है बेटा? फॉर द केस ऑफ कर्व्ड एरिया, इसमें भी दो सरफेस होंगी, एक टॉप सर्कल और एक कर्व सरफेस. बेटा कर्व सरफेस आपके पास फॉर्मूला शीट में गिवन है विच इज पाई आर एल. ठीक है, फॉर्मूला शीट से उठा लीजिएगा विच इज पाई आर एल. एंड टॉप पर सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होगा? विच इज पाई आर स्क्वायर. नाउ कीप इन माइंड, मैंने दोनों के आर को जो है ना अभी फिलहाल सेम कंसिडर किया. नाउ आई विल बी प्लगिंग इन द वैल्यूज ऑफ दीज slowly and gradually. But before we solve this, can I say pi r square and 2 pi r square can be added to form 3 pi r square plus of 2 pi r h is equals to this of pi r l plus of pi r square. Now let's work for solid A. Beta solid A का radius क्या था? जल्दी से बताओ. What was the radius for solid A? That was 2R. 2r. तो जहां जहां रेडियस होगा I'll plug in capital 2r. ठीक है, जहां जहां रेडियस होगा I'll plug in capital 2r. हाँ, so this is 3 pi times of 2r का square plus of 2 pi times of 2r again. And height क्या थी guys? What was the height of this solid? Of the cylinder, basically cylinder का था ना formula. So height 5R. of cylinder क्या थी? That was 5 5r. So you're going to use 5r over here. ठीक है, सॉलिड ए की वैल्यूज प्लग इन हो गई. अब सॉलिड बी के लिए करेंगे पाई आर एल. व्हाट इज द वैल्यू फॉर रेडियस ऑफ कोन गाइस? रेडियस ऑफ कोन क्या है? फटाफट बताओ. दैट इज जस्ट R. आर. करेक्ट. डू वी एग्री? ठीक है, और ये क्या चीज होती है? व्हाट इज एक्स? व्हाट इज दिस साइड नोन एज? इसको कौन सी एब्रीविएशन से डिनोट L. करते थे इन द फॉर्मूला? कुछ यार, एल से. शाबाश. सो आर एंड एल. Length. सो बेटा हमारे पास पाई टाइम्स ऑफ आर इनटू एक्स प्लस ऑफ पाई टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर. आई होप देयर इज नो डिफिकल्टी. सॉल्व कर लेंगे.
सो 3 पाई टाइम्स ऑफ 4r² बेटा ये स्क्वायर दोनों पे अप्लाई करना है, यहाँ पे स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं काफी. एंड देन 2 2s are 4, 4 5s are 20, so this is going to be 20 and then r that is going to be r². ठीक है, is equals to pi r x plus of pi r². So this is going to be 12 pi r² plus of 20, ये भी पाई था साथ में, सॉरी, 20 pi r² is equals to pi r x, so much r and x, oh my god, pi r x plus of pi r². ठीक है, सो मुझे बताओ इन दोनों का सम क्या हो जाएगा. कैन आई से द सम फॉर दिस इज गोइंग टू बी 32. डू वी एग्री? यस और नो? हो जाएगा 32. Yes, sir. और बेटा ये क्या मैं कह सकता हूँ, यहाँ के सी 32 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बिकॉज दीज आर द सेम टर्म्स. सो 32 minus 1 that gives us what? 31 pi r² is equals to pi r of x. I wanted to tell value of r in terms of x, तो बेटा मैं दोनों को एक साइड लेके जाऊंगा and this is going to be 31 pi r² minus of pi r x. बेटा अब हम क्या करेंगे, बिकॉज आई वांटेड टू फाइंड r, हम r को कॉमन ले लेंगे. आप डिवाइड भी कर सकते थे बट टेक्निकली एक वैल्यू उससे आपकी हमेशा रिमूव हो जाती है, सो टेकिंग कॉमन इज अ बेटर वे इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग. ठीक है, सो जब पाई r कॉमन लेंगे, सो व्हाट आर वी गोइंग टू बी लेफ्ट विद? कैन आई से वी आर गोइंग टू बी लेफ्ट विद 31r minus of x, ठीक है, is equal to 0. So either this part is supposed to be equal to 0, I hope we all agree with that, or this part is supposed to be equal to 0, which is going to be 31r is equals to x, और r की वैल्यू क्या हो जाएगी? r is going to be x over 31. Clear guys? जल्दी से बता दो for 5 marks. Clear? Yes or no? जल्दी से बताओ. Let me check this. जल्दी से बताओ. Any difficulty? So yeah, the answer seems to be correct. ठीक है, इजाजत है, आगे बढ़े. Should we move on? Should we move on, guys? I think we're done with O levels ka content. Are we done with O levels ka content? I believe we are. Let me check this once again. For O levels, the class might be over. Ek bar ruk jao. Let me cross check this, and if that's the case, फिर O level students can leave. IGCSE, IGCSE, yep, and IGCSE, IGCSE. Yep, for O levels the class is over, guys. Now is the time for IGCSE students. ठीक है, so anyone who is from O levels and if they're still with us, thank you for being here, guys. आप लोगों के topics cover हो गए from this paper. Now we'll be moving on to IGCSE के questions. ठीक है, जो हमने questions छोड़े थे IGCSE वालों के लिए, जरा उनके पास चलते हैं क्योंकि paper initially उनका ही है. ठीक है, चलो हसनैन, I'm not sure if this is your first class or anything because the name seems to be a bit weird. Anyways, thank you. Let's move on to IGCSE questions. What is the first question that we have? We have this one. चलो IGCSE students, जरा देखो इस पेपर को क्या कहता है. It says work out the exact length of AC. Allah Hafiz. Are you not doing IGCSE, Abdullah Naveed? Are you not from IGCSE? I thought you're from IGCSE. Anyways, chalo. So the diagram shows a right angle triangle ABC. Work out the exact length of AC. Guys, exact length of AC कैसे निकलेगी? जल्दी से बताओ. अच्छा ये वैसे हो सकता था, सॉरी ये ओ लेवल्स में हो सकता था. अल्लाह हाफिज. चलो कोई नहीं, हमारे पास एग्जैक्ट लेंथ ऑफ AC गाइस. AC कैसे निकलेगा जल्दी से देखो. हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड दिस वैल्यू अननोन व्हिच इज y? कैसे निकालोगे इसको? इसको कैसे निकालोगे? व्हाट आर यू गोइंग टू डू? What data is given? Trigonometric ratio. कौन? Sorry, I can't hear you. What are you saying? Trigonometric ratios. Trigonometric ratio, beta, we don't know the value of x, so angle भी नहीं given, so how are you going to apply trigonometric ratio? That's not a very nice approach. Why? Because आपके पास अगर एक angle भी unknown है, एक length भी unknown है, दो चीजें unknown है, आप सिर्फ एक चीज से find नहीं कर सकते. So Zimal, you're absolutely correct. You're going to solve using Pythagoras theorem. So Pythagoras theorem से you're going to say y square plus of 8 square is supposed to be equivalent to 121 1 square. So जाएगा y square is equal, no, 11 square, sorry, 11 square
that is 121. So 11 square, so this is going to be 121 minus of 64, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, that is going to be root of 121 minus 64. what is that guys, क्या होता है जल्दी से बता दो. दिस इज 56 57 आई बिलीव, सो 57 हो जाएगा. रूट ऑफ 57 शुड बी द आंसर एग्जैक्ट. कैन वी सॉल्व इट फर्दर? अगर आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन भी करते हो, सो दिस वुड बी व्हाट, 2 से होता नहीं, 3 टाइम्स ऑफ 19 होगा, एंड 19 1 जरा, सो यू आर गोइंग टू लीव इट एज इट इज, व्हिच इज गोइंग टू बी रूट ऑफ 57 फॉर दिस पार्ट. ठीक है. फिर कहता है find out cos x is equals to k. So we have to find the value of k. कैसे होगा जरा इस पार्ट को देखो बेटा. cos कैसे अप्लाई होगा जल्दी से बताओ. cos कैसे अप्लाई होगा? cos is applied for theta is equals to, क्या फॉर्मूला होता है cos theta का? cos x is supposed to be equivalent to what? जल्दी से बताओ क्या होगा. हेलो गाइस, कम ऑन, क्या होगा बताओ. cos कैसे अप्लाई होता है राइट एंगल ट्रायंगल में? आर यू स्पीकिंग? Anyone? Or opposite over hypotenuse. Wait, is it my internet? I can't listen to you guys properly. So cos is applied. I'm not sure what you said. Apologies. I think adjacent over hypotenuse. ठीक है, करेक्ट है. तो बेटा adjacent क्या साइड है जरा देखो. ये मेरे पास hypotenuse है, ये मेरे पास opposite है, और ये left over side क्या है? Adjacent है. 8 centimeter. It's supposed to be equal to 8 over 11. So value of k क्या होगी बेटा? You understand that cos x is already given and this is supposed to be value of k. You don't need to do any sort of calculation. Very easy. ठीक है. अगर कोई question हो तो guys chat में लिख लीजिएगा इसमें, because I think I have some internet issues today. मुझे आवाज आपकी जो है कट कट के आ रही है. ठीक है. अच्छा जरा इस पार्ट को देखें. कहते हैं द मिनिमम पॉइंट ऑन अ क्वाड्रेटिक कर्व इज दिस. तो बेटा मिनिमम पॉइंट का दूसरा नाम क्या था, कुछ याद है? व्हाट वाज द अदर नेम फॉर मिनिमम पॉइंट? दिस इज सपोज्ड टू बी व्हाट? दिस वाज सपोज्ड टू बी द, can I say minimum point is basically what? It's this, and this is what? Isn't this a turning point? Do we all agree with this part? Yes or no? Do we agree? Yes. A yes or no in the chat would work, or a reaction as well. ठीक है. अब कहता है examiner says find the equation of the line of symmetry for the curve. क्या find करना है? एक equation करनी है for the line of symmetry for the curve. इस बात को गौर से समझिएगा कि no matter if a graph is like this, if it's a happy face or if it's a sad face, ठीक है, कोई सा भी quadratic graph हो बच्चे. एक सेकंड दो. अच्छा मुझे माइक चेंज करने दो. I mean headset. Wait, just a moment. Can you speak now? Yes, Simil. Hello sir, can you hear me? Yeah, perfect. Now it's perfect. ठीक है. अच्छा अब देखो हमें कहता है find the equation of the line of symmetry of the curve. बेटा line of symmetry quadratic graph में हमेशा बनती है turning point के middle से vertically. I hope you understand this concept, because this part, this region would overlap onto this region if you break it from the middle point. Do you understand what I say? क्या बात समझ आती है? Yes or no? ठीक है. सो अब मुझे बताइएगा कि यहाँ पे वर्टिकल लाइन अगर टर्निंग पॉइंट से पास हो रही है, सो व्हाट इज दिस कोऑर्डिनेट? एक्स कोऑर्डिनेट, बिकॉज दिस लाइन विल बी ड्रॉन ऑन द एक्स एक्सिस लाइक दिस, एंड दिस इज ऑलवेज गिवन फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ x इज इक्वल्स टू द कोऑर्डिनेट इट्स पासिंग फ्रॉम. और एक ऐसा कोऑर्डिनेट था टर्निंग पॉइंट, इट वाज -3, सो द इक्वेशन इज गोइंग टू बी x इज इक्वल्स टू -3. फिर कहता है राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द कर्व इन द फॉर्म ये. सो बेटा हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द कंप्लीटिंग स्क्वायर द सिंपलीफाइड फॉर्म इट्स सपोज्ड टू बी y इज इक्वल्स टू a times of x minus h square plus of k. ठीक है. दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड. नाउ हम कह सकते हैं कि यहाँ पे a की वैल्यू विल बी कंसिडरिंग 1, ये वाली सॉरी, या इस a की बात करें यहाँ पे इट्स 1 बिकॉज नथिंग इज गिवन. ठीक है. सो दिस इज गोइंग टू बी 1 फॉर दिस केस. यहाँ पे हमारे पास क्या आएंगे? यहाँ पे वी आर सपोज टू प्लग इन द वैल्यूज ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स. ठीक है. अब टर्निंग पॉइंट्स कैसे होंगे? वी हैव सेड दैट हमारे पास ये माइनस h इज सपोज टू बी इक्वल्स टू व्हाट? minus h is supposed to be equals to -3, where h की वैल्यू क्या कंसिडर होगी हमारे पास? h की वैल्यू 3 कंसिडर होगी. सो दिस इज गोइंग टू बी y इज इक्वल्स टू x प्लस ऑफ 3 का स्क्वायर, एंड देन प्लस k इज इक्वल्स टू -5 व्हिच इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ 5. सो दिस इज द इक्वेशन दैट यू आर गोइंग टू राइट. एनी डिफिकल्टी विद दिस पार्ट? जल्दी से बताइएगा. कोई यहाँ पे इशू तो नहीं है? अगर हो तो प्लीज बता दीजिएगा, सो आई कैन रिपीट दिस फॉर यू. ऑल गुड. ठीक है.
अच्छा जरा अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा इस सीक्वेंस को देखिएगा, मुझे बताइएगा कैसी सीक्वेंस है जो हमने स्किप की थी। व्हाट टाइप ऑफ सीक्वेंस इज दिस? व्हाट्स हैपनिंग टू द सीक्वेंस अगेन एंड अगेन? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बार बार सीक्वेंस को? आई थिंक दिस वुड बी मच इजियर टू फिगर आउट एंड देन वी विल कॉम्प्रिहेंड। क्या हो रहा है यहाँ पे? कैन आई से द होल सीक्वेंस is being multiplied with what? It's being multiplied with 2. Do I get this concept? Yes or no? जल्दी से बताओ, क्या बात समझ आती है? सो बेटा जब किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा तो कौन सी सीक्वेंस कही थी हमने? डिड वी कंसिडर दीज टू बी ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस? यस और नो? क्या ज्योमेट्रिक कंसिडर किया था हमने इन सीक्वेंसेस को? सो इफ द सीक्वेंसेस आर ज्योमेट्रिक, व्हाट इज द फॉर्मूला? द फॉर्मूला दैट वी हैव लर्नड इज व्हाट? दैट इज सपोज्ड टू बी Tn is equals to Arn minus 1, where this is the initial value and R is what? R is the common ratio. ठीक है, कॉमन रेशियो कैसे निकलता है? कॉमन रेशियो इज द नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय इट्स प्रीवियस टर्म। ठीक है, ए की वैल्यू क्या होगी? ए की वैल्यू सपोज टू बी 1/4। आर क्या होगा बेटा? आर इज द कॉमन रेशियो जो आप बेसिकली 4/2 से करोगे। सो इट्स 4/2, दैट गिव्स अस व्हाट? दैट गिव्स अस 2, या 2/1, दैट गिव्स अस 2, व्हिच इज द मल्टीपल बेसिकली, दैट इज गोइंग टू बी योर आर इंटू 2 power of n - 1। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे? क्या मैं कह सकता हूं कि ये 4 और 2 सिंप्लीफाई हो सकता है? यस और नो? कैन वी सिंप्लीफाई दीज वैल्यूज? जल्दी से बता दो, यस और नो? यस और नो इन द चैट, कैन वी सिंप्लीफाई दीज वैल्यूज? वी कैन नहीं कर सकते बेटा। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज दिस हैज अ सर्टेन पावर एंड दिस डजंट हैव एनी पावर, सो दीज कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड और सिंप्लीफाइड टुगेदर। ठीक है, देयर इज वन मोर वे ऑफ डूइंग इट। कैन आई से दिस इज बेसिकली 2n - 1। एक सेकंड जशीन, इसको कंप्लीट करने दो। ठीक है, 2n - 1 डिवाइडेड विद 4। बेटा 4 को हम इन टर्म्स ऑफ 2 कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट दिस एज 2 स्क्वायर। डू वी एग्री विद दिस पार्ट? एनी डिफिकल्टी सो फार? एनी डिफिकल्टी? जल्दी से बताओ, एनी डिफिकल्टी विद दिस पार्ट गाइस? IGCSE। अब मुझे एक बात ये बताओ कि कैन वी सिंप्लीफाई दिस एनी फर्दर? क्या हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं? डू वी हैव बेसिस, same basis? Yes, we do. Can we subtract the powers that they have? So can I say this is going to be what? This is going to be 2n minus 1n minus of 2. So this gives me 2n minus of 3 as the sequence. Is this part clear, guys? जल्दी से बता दो IGCSE students. Right? Yes or no? या मैं आगे बढ़ूं? Clear है? पक्की बात है? ठीक है, चलो if this is clear we'll move on to the new question. जल्दी से ले लो पिक्चर, चलो take a screenshot, take a screenshot of it. Done? चलो आई बिलीव यू डन, लेट्स गो। ठीक है, चलो now we have to solve this guys। cos का ग्राफ कैसा बनता था? now we're supposed to draw a graph of cos। you need to remember कि cos sin के ग्राफ हमारे पास कर्व बनता था like this, cos के ग्राफ हमारे पास v शेप होता था like this starting from 1। so हम कहेंगे 1 से स्टार्ट होगा, फिर ये हमारे पास कहीं 90 पे 0 पे आएगा, फिर ये हमारे पास और नीचे जाएगा, फिर at this point and at this point। this is how your cos का ग्राफ should be and you're going to draw it like this। it should be a smooth curve, so बेटा smooth curve कुछ V shape में बनेगा। oh my god, this is going to be difficult now। चलो सब करवा लो बट ये स्केचिंग ना करवाओ। समथिंग लाइक दिस गाइस, जस्ट मेक श्योर इट्स वेरी स्मूथ। ठीक है, आई कांट ड्रॉ इट प्रॉपर्ली बट आपको एक प्रॉपर स्मूथ सा कर्व समथिंग लाइक दिस बनाना है। ठीक है, जस्ट मेक श्योर यू ड्रॉ इट प्रॉपर्ली स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पार्ट, यहाँ से आगे से। ठीक है, जस्ट मेक श्योर यू जॉइन दीज पॉइंट्स प्रॉपर्ली। एक वी स्मूथ कर्व लिखना चाहिए। ठीक है, अच्छा now it says cos of x is equals to what? 1/√2 and x is a reflex angle, calculate the value of x। मुझे बताइएगा क्या हमने कोई 1/2 पढ़ा है? for any angle did we get the answer as 1/√2? कुछ याद है? did we do any such part? अगर हम देखें यहाँ पे जो हमने एग्जैक्ट वैल्यू सीखी थी ट्रिग्नोमेट्री में, सो मुझे बताओ क्या हमारे पास 1/√2 फॉर एनी केस फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है? जल्दी से देख के बता दो। डू वी हैव 1/√2 एज एन आंसर फॉर एनी ऑफ द केसेस? No. नो। सो अब हम क्या करेंगे? क्या एग्जामिनर ने हमें कंफ्यूज किया है? सो इस बात को जरा समझो कि is this the correct form to write values or sets? Is this the correct form, Zimal? No.
No, we need सो to अगर हम rationalize. हाँ, तो जब हम रैशनलाइज करेंगे 1/√2, सो ये क्या होगा, √2/√2, राइट? सो कहना है से ये मेरे पास हो जाएगा √2/2 एज द आंसर। डू वी गेट दिस पार्ट, यस और नो? क्या हम कर सकते हैं? ठीक This है, is a sign of अब 40. इज इट साइन ऑफ 40? हाँ, साइन ऑफ 45, बट हमारे पास ये था कि एब्सोल्युटली करेक्ट। बट इफ यू हैव अ लुक, वाज दिस सपोज्ड टू बी साइन? क्या साइन के लिए फाइंड करना था या कॉस के लिए फाइंड करना था? Cos. तो बेटा कॉस पे √2/2 कब आता है? कहना है इट्स सपोज्ड टू बी 45, यस और नो? Yes. Yes, so what are we going to say? We are going to say that cos of 45 gives us √2/2. ठीक है, where the value of x is supposed to be 45. But the question is it truly a reflex angle? बच्चे 45 isn't a reflex angle. Reflex angle क्या होता है? It's an angle that is greater than 180 and lies underneath of 360. ठीक है, so मुझे बताओ कि अगर मैं एक लाइन यूं ड्रॉ करता हूं, अगर ये एंगल 45 है, तो इसका रिफ्लेक्स क्या होगा? What is that going to be? 180 minus 45. 180 मार खाएंगे, मैं बता रहा हूँ। 360. What is 360 minus 45. Yeah, so that gives us what? That gives us 315. Is this part clear? Is this clear? बात समझ आई है? Yes or no? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो। सर um, एक सेकेंड आप ऊपर करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। इसी क्वेश्चन का चलो ले लो। वेट, जस्ट मेक श्योर गाइस दिस इज वेरी स्मूथ। ठीक है, इसको थोड़ा सा स्मूथ बना लेना। चलो चलो ठीक है। um, दिस वाला कहता है वर्क आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कैसे आएगा? कहना है से इट्स गोइंग टू बी हाफ 1 ऑफ over 2. 6 into 10 ऑफ साइन ऑफ 30। बेटा प्लीज ये रेशियोज याद कर लेना, याद कर लोगे तो बेहतर है। रट्टा मार लेना, रट्टा नहीं मार सकते तो शॉर्टकट याद कर लेना जो मैंने बताया। उसमें थोड़ा सा टाइम जाया होगा बट एटलीस्ट क्वेश्चन निकल जाएंगे। ठीक है, इफ यू हैव इनफ टाइम। तो बेटा व्हाट इज साइन ऑफ 30? जल्दी से मैं दिखा देता हूँ साइन ऑफ 30 क्या होता है। साइन ऑफ 30 हमने किया इट्स सपोज्ड टू बी 1/2, सो दिस गिव्स अस व्हाट? दिस गिव्स अस this gives us what? This gives us half into 6 into 10 into half। ठीक है, सो बेटा ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, सो 3 times 5 is what? That is 15 for 3 marks। इमेजिन एग्जामिनर ने कितने फ्री के मार्क्स दिए हमें। ठीक है, चलो ये पार्ट देखो, कहता है क्या? अच्छा, कहता है given that the total given that the total of two numbers is odd, find the probability that one of the numbers added is 15। सर ये तो O levels में भी हमने पढ़ा। सो व्हाट इज द डिफरेंस? क्या डिफरेंस है इस क्वेश्चन में और जो हम बाकी सारे स्टूडेंट्स के साथ कर सकते हैं? व्हाट इज द डिफरेंस? क्या इशू है इस क्वेश्चन में? कैन यू फिगर आउट व्हाट कॉन्सेप्ट इज दिस? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी तो है, प्रोबेबिलिटी तो हम वैसे भी करते हैं, बट इट इज व्हाट टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी? दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। याद है कुछ किया था? यस और नो? कुछ याद है क्या कहती कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? जरा मैं दिखाता हूं एग्जांपल्स। फॉर द केस ऑफ प्रोबेबिलिटी वी लर्नड दैट हमारे पास हाँ, हमारे पास क्या कहता है? नहीं किया। अच्छा देखो, हमने क्या किया था, हमने कहा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वो होता है जब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेट आउटकम्स विद इन द गिवन कंडीशन हम डिवाइड करते हैं फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन कंडीशन। ठीक है, और इसमें कीवर्ड क्या होता है एग्जामिनर का कीवर्ड इज गिवन दैट। ठीक है, व्हाट इज द कीवर्ड टू फिगर आउट दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? लेट मी हाईलाइट इट। द कीवर्ड ओवर हियर यूज्ड इज व्हाट? इट इज गिवन दैट। ठीक है, सो गिवन दैट वाली कंडीशन का जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा, वो स्टार्ट में भी हो सकता है, वो कहीं मिडिल में भी हो सकता है सेंटेंस का। इट इज सपोज्ड टू बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है? जो आपको गिवन कंडीशन है उसकी प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर में और जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है विद इन द गिवन कंडीशन न्यूमरेटर में। क्या मतलब, गौर से समझिएगा इसको। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे गिवन दैट वाली कंडीशन क्या है? द गिवन दैट कंडीशन इज द टोटल ऑफ द टू नंबर्स इज ऑड। मुझे तो पहले ये बताओ इन सारे आउटकम्स में से ऑड नंबर्स कौन से हैं? कैन आई से कि मेरे पास ऑड नंबर सारे ये वाले हैं, ऑड 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 एंड ऑड। डू वी एग्री? यस और नो? फ्रॉम द 9 आउटकम्स, यस और नो? क्या बात समझ आती है? अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, जरा बात को समझो। द कॉन्सेप्ट सेज प्रोबेबिलिटी ऑफ
favorable outcomes from a given condition within a given condition divided by the probability of given condition. ठीक है, so मुझे बताओ given condition हमने क्या find किया. Can I say the given condition is supposed to be जो denominator में आएगी, those were 5 outcomes out of 9. Do we get this part? हाँ या नहीं? Do we understand this concept? Yes or no? Do we understand this concept, guys? Yes or no so far? Any यस difficulty? ठीक है, अब अगला क्या कहता है, आपने गिवन कंडीशन तो आइडेंटिफाई कर ली. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द नंबर्स एडेड इज 15. बेटा नंबर्स ऐड कौन से हो रहे थे, एक आपके पास ये सेट ऐड हो रहा था, ठीक है, और एक आपके पास ये सेट ऐड हो रहा था. सो डू वी से कि दिस वाज 15. 15 मेरे पास कहां था, वन ऑफ द नंबर्स एडेड. सो बेटा ये 15 ऐड हो रहा था, एंड दिस 15 बेसिकली इज गोइंग टू बी इन ऑल ऑफ दीज थ्री केसेस. ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है. मतलब क्या कि ये जो आउटकम था दिस वाज सपोज्ड टू बी 15 एंड 4, ये जो आउटकम था दिस वाज सपोज्ड टू बी 15 एंड 5, और ये वाला आउटकम जो था वो क्या था, 15 एंड 6. बट हमने क्या कहा था, हमने प्रोबेबिलिटी ऐसी लेनी होती है जो विद इन गिवन कंडीशन होती है. तो बेटा इसमें 15 भी होना चाहिए और गिवन कंडीशन में भी. ऐसे कितनी प्रोबेबिलिटीज थी जो पे दोनों टिक हो रही हैं. सो कैन आई से दैट इज ओनली गोइंग टू बी दिस पार्ट एंड दिस पार्ट. डू वी गेट दिस पार्ट? बिकॉज ये ऑड नहीं था तो ये गिवन कंडीशन में एग्जिस्ट ही नहीं करता. डू वी एग्री विद दिस? यस और नो? डू वी गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस Yes. बेटा पहले तो मुझे ये बताओ, जिमल, डिड यू अटेंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस? बिकॉज यू आर नॉट हियर द होल रमजान. हमने रमजान में किया था. वर यू हियर इन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? I mean, you have the answer. I literally did a similar example. फिर मुझे कंडीशनल क्लास के एंड में रुको, I'll explain it. बाकी सबको समझ आया? Is this clear? Guys, is this clear for other students? यस Anyone else जिसको समझ नहीं आया? ठीक है. So मेरे पास given condition favorable from within the given क्या होगी बेटा? That is 2 outcomes out of 9, so it's going to be 2 over 9. ठीक है. So 2 over 9 divided by 5 over 9, which means 9 over 5. So the probability is going to be what? That is going to be 2 over 5 for this case. ठीक है. चलो. And that is बल्कि खत्म ही हो गया पेपर, so we can spend time on this. ठीक है, so we are done with the paper itself. ठीक है, so that is going to be it, guys. अगर कोई question है तो प्लीज मुझे बता दें, otherwise I'll explain. सर मैंने जी, I can't सर hear you. मैंने आपको व्हाट्सएप पे कोई क्वेश्चन भेजा था एक. Wait, yes, एक किसी ने भेजा, आपने मुझे दोपहर में भेजा था ना शायद. I couldn't check it, जी really sorry. मैं जरा चेक करता हूँ, really sorry, I couldn't check it. I couldn't check it, really sorry. अच्छा चलो, anyways, any questions so far? Any questions? सर एक और वो सॉरी जो अभी आप ऊपर करा रहे थे मैं आपको बोल नहीं सकी थी, वो जो आपने वो कराया था लाइन ऑफ सिमेट्री वाला. वो समझ नहीं आया? सर उसकी नहीं आई मेरी समझ, उसका 3 अच्छा आंसर आया चलो था. चलो चलो, मैं रिकॉर्डिंग एंड करता हूँ, मैं दोनों भी समझाता हूँ.